It feels good. It's a different experience altogether. Big Boss was a different experience. खतरों के खिलाड़ी बहुत ही different था. तो मेरे लिए मैंने ऐसे दो चीज़ें कर ली कि मैं अपनी next generations को flaunt कर सकती हूँ. You know what, your nanny's done this. The kind of things I've done in खतरों के खिलाड़ी were insane. Like मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरह की चीज़ें कर पाऊँगी या मैं करने के काबिल भी हूँ. और जब मैंने ये किया तो मुझे ऐसे लगा कि you are capable of doing so much that you don't realize until it's life and death, until it's winning and losing. So mostly life and death, because दो हमारे पास इतनी सेफ्टी थी, सारे सेफ्टी गेयर्स थे, लोग थे, डाइवर्स थे, सब हर तरीके से दे इंश्योर्ड दैट हम पूरी तरह से सेफ है. पर जब आप उस मोमेंट में होते हो, एक दो बार तो मुझे ऐसा लगा कि बस यहीं पे इट्स ओवर फॉर मी. बट देन आई एम ग्लैड आई एम अलाइव. एंड मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई है कुछ स्टंट्स के दौरान, उसके स्कार्स भी है. सो नाउ आई नीड टू गेट ट्रीटेड. बट आई हैव हैड एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था और यादगार रहेगा. So it was all about pain in Spain. So It was totally painful, very painful. so क्या adventurous हुआ वहाँ पे आपके साथ? If you like to share with us. मैंने बहुत सारे स्टंट्स किए, वो हर तरीके के स्टंट्स किए. मतलब मुझे लगता है ऑन मदर अर्थ ऐसा कोई एनिमल नहीं बचा होगा जिसके साथ मैंने स्टंट नहीं किया. बीट फायर, बीट स्पीड, बीट हाइट, बीट एनिमल, क्रीपी crawlies, वाटर, air, everything. I've done stunts related to everything and I'm so glad that मुझे ये करने का मौका मिला, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है. और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी में गई थी और जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं खतरों के खिलाड़ी से बाहर निकली हूँ, बहुत फ़र्क है. And yeah, keep watching खतरों के खिलाड़ी. That's where the action begins on the 22nd July, only on Colors. Thank you so much. Yes, thank you. So this journey in Spain was unlike anything that I've ever done before. It was an incredible experience. It's a once in a lifetime opportunity. It's something that not everybody gets to do, and it was truly one of the best moments of my life. So how painful was this pain? It wasn't actually painful. It was more challenging. It was more exciting. It was scary. The pain comes afterwards. चैलेंज के बाद, स्टंट के बाद, जो cuts, scratches, all of the, you know, after the adrenaline stops pumping, everything you feel, the pain happens afterwards. लेकिन बहुत exciting experience था. ज़िंदगी में सिर्फ एक चांस मिलता है इस शो करने के लिए, और I'm just so happy that I did it. It was great. So have you seen? So sorry, you're asking us how was our journey? yeah. Our journey was spectacular. It was really, really good actually. It was a beautiful. I had a very bad joke, but I can't track that right now. It's an internal joke. Yeah. His journey was great. You know, Ritvik is like a reality champion. He walks on set like this every day. He's excited. He's pumped. He wants to win. Yeah. You know, Ritvik has that mentality, and it's a good attitude to have. Well, yeah, it was a lot of fun, to be honest, and I think I'm glad that I did it with friends. I know so many of them on the season. Ravi, Vahi, Shibani, I know for so many years. So I think that's exactly what made the journey even more better, even more memorable. So. Yeah. What about you, Dubes? So the most terrific journey, I think. मैं इतने apprehensions और speculations के बाद finally इस show के लिए हाँ कहा, and I'm glad that I did that. I would have really missed on a huge opportunity to find myself अगर मैंने ये show नहीं किया होता तो. I'm just glad that I did it. स्पेन सबसे ज्यादा अगर किसी ने एक्सप्लोर किया तो वो शिबानी है. उनसे पूछिए, शिबानी ने बहुत एक्सप्लोर किया स्पेन. उसने कुछ Spanish बड़े खोद के she's become an food, Spanish archaeologist also. beaches, Spanish boys, Spanish food. Same thing. No difference. So yeah. No, I mean, come on. You get an opportunity to not just do a once-in-a-lifetime show like Fear Factor. When you do it in a beautiful country like Spain, it's a no-brainer. So I think for all of us, it was an experience that we'll remember for the rest of our lives because of the bond that we built with each other. We've made friends for life. We've done things that we would probably never do again. Some of us more than others. But I mean, you get an offer like Fear Factor and you say yes. They ask you to do it in Spain and you say yes. And they ask you to do it with Ritvik, you definitely say yes.
मतलब हर चीज़ तो आपको लाइफ में अच्छी नहीं मिल सकती ना, आपको एक्सपीरियंसेस भी मिले हैं, फिर उसके बाद आपको आप चाहोगे कि आपको अच्छे कंटेस्टेंट्स भी मिले हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। तो अभी कुछ चीज़ें चैलेंजेस थी, मगर फिर भी आई वेंट अहेड विद द शो। आई मीन ऋत्विक वाज देयर एज अ को-कंटेस्टेंट, बट Yeah. it was very difficult, yeah. Very difficult to say yes once I got to know She really ऋत्विक can't भी। say this. Coincidentally, she's been with me on all my shows. Every reality मैंने show. जितने reality Bad shows karma, yeah. Every reality show I have done, this guy has been there. I don't know why. He's been stalking you. Yeah, totally. हर लिहाज से बहुत चैलेंजिंग था, और चैलेंज शो शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था। ये डिसाइड करना कि ये शो करना है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, whether they'll be मतलब will I be able to survive in the show also or not। तो उस तरीके के स्पेकुलेशंस, उस तरीके के ख्यालों से बैटल करना पहला चैलेंज वो था। उसके बाद जो स्टंट शुरू हुए वो तो मतलब they were challenging to another level altogether, and when you see the show you will know that how this show is also very evolutionary for the contestants. How challenging? I'll be honest with you when it comes to the challenging front or the challenging bit of the show. मेरे लिए मैं जब ये शो शुरू कर रहा था तो I didn't think of it as something जो मैंने पहले नहीं किया हो, या ऐसा कुछ मेरे सामने आएगा जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। I was very linear in terms of कि जो आएगा उसे देखा जाएगा, and I wasn't really scared of things that I was going to do. मुझे नहीं लग रहा था, shut up, मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा which will make me really go damn, will I be or will I not be able to do it? But yes, there have been times in the show जिसके बारे में हम आपको फिलहाल नहीं बता सकते। There have been times in the show जो stunts which did make us go like कि why the hell are we here? हम क्यों कर रहे हैं? हमें इससे अच्छा मर जाना। वो it was the worst experience when it comes to that one particular stunt जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते आपको। I think for me that when people ask me what are your fears, I don't really have a list. So I can't really point out this scares me, that scares me. But one thing that, because these are things that we're not doing in everyday life. So you can't really compare it to your everyday life. It's something that's a completely different experience. What was very similar for me in terms of my life as well as this show was the fear of failing. I didn't want to fail. So that's what scared me more than, you know, doing stunts underwater or with creepy crawlies or with height. The most scary thing for me was failing a challenge. And I think that's something that I did really hard. I don't want to say too much, but that's something that's really tough for me in life. When I But she fail played, at I have to something, tell you, Shibani played really well when it was the most important for her to. yeah. Like she did, and वो इतना crucial moment था, वो भी आपको हम नहीं बता सकते. But she played so well. She was brilliant. अमूल दूध पता है क्या? बिन बोले सब बोले, वो भी हम नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते, बताते बता सब कुछ दिया। Yeah, I think that's really important to just be able to. I don't want to fail at this, but even if you do, how you manage that. And if you don't want to see her, still be there. I'll be there because we are there. There's no. कितना कुछ हुआ है हमारे साथ, लेकिन दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि आप सब लोग आए, क्योंकि आप लोगों से आज हम हमारा दर्द बांटेंगे। हमारे जो खून के आंसू बहे हैं स्पेन में, जो हुआ है हमारे साथ में उधर, मतलब कोई तो है जो हमारी आज सुनेगा, जो दर्द हमें मिले हैं। आप तो दर्द आज भी इसके साथ है। नहीं मतलब जो दर्द तेरे सीने में उठता है ना, पेन इन स्पेन सोच के, उस दर्द की बात कर रहा हूँ पगले। थैंक यू। बट खैर वो दर्द तो चलता रहता है, लेकिन आई हैव टू टेल यू वी हैव एंजॉयड अ लॉट। हम लोगों ने बहुत मजा किया, डिडंट वी? वी हैड अ ग्रेट टाइम। मतलब आप कलर्स वाले अगर 12 ऐसे पागल प्राणियों को उठाकर स्पेन में रख देंगे तो क्या होगा? बूम बूम धमाका ब्रो, धमाका। और वो धमाका हुआ। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। पर पंगा सिर्फ ये है कि वो ब्लास्ट जब हुआ तो हम लोग गाड़ी के अंदर थे और हमें नहीं पता था कि गाड़ी हमारे नीचे, ब्लास्ट हमारे साथ हो रहा है। बाद में मैं आपको बताऊं तो कई बार ब्लास्ट ऐसे भी हुए जिनका स्टंट से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हमारी नाक से लेना देना था। वो ऋत्विक व्हाट आर यू डूइंग यार? क्या नॉनसेंस है? लोग बैठे, पूरा मीडिया बैठा इधर यार, क्या बकवास है ये? ओके ये लो आई। हाँ ओके, ये मैं खड़े हैं, ये रवि खड़ा है। ओके, किसने किया? मैं? कौन? रवि? हाँ, मैंने नहीं किया। Every time he used to say this. एक बार क्या हुआ, ऋत्विक भी नहीं है, सिर्फ ये और मैं खड़े हैं। फिर से आवाज कर, पकड़ा गया मैं। आवाज कर। किसने किया? I cannot tell it. George Washington said that. दरअसल मैं आप हिना मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये और मैं प्लान करके जाते थे, इसको जब भी आता था तेरे पास आके था, इसके पास जाके पा दूंगा। हर किसी के साथ करता था ये। हाँ, ये लड़कियों के साथ क्या किया वो तो पूछो। ओए मतलब उनको जेवरात गले में, गहनों के नाम पे उनके गले में कोबरा अजगर डाल दिया करते थे, कभी हवा में लटका दिया करते थे। बड़े बहुत ही हमारे दिल के करीब है वो। उनके बारे में थोड़ी ज्यादा बात ना करते हुए हम बढ़ते हमारे कंटेस्टेंट्स की तरफ। I hate this song! girl power! ये तो कहीं सुना है मैंने।
Thank you, Hina Khan, everybody. Make some noise, Hina Khan. तेरी भी एक्टिंग कभी अच्छा मैं Ravi next. लायन रेडी है, स्टैंड रेडी है, जस्ट गिव मी 5 hours for makeup now please. कुछ लोपा. There you go. ये क्या हो रहा है? ये पीप यार पीप. ये क्या हो रहा है? पीप. मतलब कैसे पता चला? एक सेंटेंस में 50 बीप आए, पता चल गया था नहीं है. मैं जानना चाहता हूँ पूरी मीडिया को पता है कि नहीं है. मतलब किसी ने गैस भी नहीं किया कोई और. भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. अगला कंटेस्टेंट. अरे ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है. दंगल. ये गीता जी आज अपने गीता फोगट, जो फोगट में नहीं आई, सबसे ज्यादा पैसे उसी ने लिए. गीता जी आज अपने पतिदेव के साथ आई हैं. पवन जी कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको मुंबई? बहुत अच्छा लग रहा है. आपको पता आपको बड़ा मिस किया इन्होंने. बहुत. हाँ खैर पतिदेव फोन पे बोलते थे कि गीता तू फिर जीत गई. अरे तो फिर जीत गई. तू फिर वहीं रहेगी, मतलब जल्दी नहीं आएगी तू वापस. ये हमें सुनने मिलता था. और अगला कंटेस्टेंट इज आवर फेवरेट. यार मैं एक शो के लिए से मर नहीं सकता यार. आई कांट टायर ऑफ द शो यार. ओह माय गॉड फरहान. रुक इतनी आवाज थोड़ी और खराब करता हूँ यार. आई कांट टायर ऑफ द शो यार. माय गॉड भाई. थैंक यू भाई. तू आईफोन से कब आई? आई मिस यू सो मच ब्रो. इसके गले में सरस्वती है, बस बैठी हुई है. ये थे करण भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जो फिलहाल हम लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं. एवरीबॉडी पे सम अटेंशन. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Excuse me, media. Do you want to see my boots, please? Boots. मोनिका शिबानी में से कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शिबानी यहाँ है इसलिए शिबानी डांडेकर. All of you guys, we have had a great time. We have had a great bunch of contestants. इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, please. Come on. आप लोग आ सकते हैं प्लीज स्टेज पे. और अब उनको रोहित शेट्टी everybody. ओए क्या बीच में क्या बज रहा है? क्यों? बट सर आपसे एक सबसे पहले तो ये सवाल जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे सीजन्स किया. हाउ स्पेशल वाज दिस पर्टिकुलर सीजन? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच. सर झूठ वाला सच. सच बोलूं झूठ बोलूं? सच. ये एक्चुअली स्पेशल रहा सीजन इन सब जोकर्स के वजह से. मतलब हाँ, ये सीजन में एंटरटेनमेंट हम हर सीजन में कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट ज्यादा हो. बट ये जो बंच था, ऐसा एंटरटेनमेंट मिलेगा आप लोगों के, आप लोगों ने देखा नहीं होगा. स्टंट्स देखोगे आप डरोगे भी और साथ में हंसोगी भी कि जिस तरह से इन सब ने परफॉर्म किया है वो देखकर. सर ये इसी बात से मुझे याद आया कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट स्टंट के बीच में कौन सा है? सारे स्टंट फनीस्ट. वो कलर्स की टीम एडिट कैसे करती है, लेकिन अगर वो स्टंट वैसे ही रखे तो मैं गारंटी देता हूँ, मतलब गोलमाल से फनी स्टंट था वो था लोपा मुद्रा और गीता. एंड बिलीव इट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. वो एक रोंडा करके बहुत खूबसूरत टाउन है, वहां वो स्टंट शूट कर रहे थे. 2 बिल्डिंग पे स्टंट था, एक तरफ गीता एक तरफ लोपा. एंड सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एडिट देखेंगे नीचे रेस्टोरेंट्स छोड़ के सारे जो कस्टमर्स हैं, जो वहां के शहरी हैं, वहां के लोग हैं, वो सब बाहर आके स्टंट देख रहे थे और हंस रहे थे. वो टग ऑफ वॉर था गीता और लोपा के बीच. एक बिल्डिंग पे लोपा है, एक बिल्डिंग पे गीता है. अब वो स्टंट शुरू हुआ. गीता ऑब्वियसली गीता ने खींचा और लोपा आगे. अब लोपा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है, तो लोपा रस्सी छोड़ दे और बैठ जाए. तो गीता, और मैं गीता की तरफ खड़ा हूं सेफ्टी देखने के लिए. तो गीता ने शुरू किया, सर ये तो रस्सी छोड़ रही है. फिर गीता ऐसे हो गई, सर जी आप ही कुछ कर दो. फिर तीसरे में बोलती, सर जी मैं रस्सी आपको दे दी, आप ही फेंक दो इसे. आप ही पुश कर दो सर. आप ही पुश कर दो. दरअसल वो स्टंट ऐसा स्टंट हो गया था, आई हैव टू टेल यू, कि नीचे लोग बैठे हुए थे और अपने घर वालों सबको बुला लिया और ड्रिंक पे बैठे हुए सट्टा लगा हुआ. आज मेरे 50 रुपए लगे, ये गिरेगी. ये नहीं कूदेगी. नहीं, there were people saying, come on, 1, 2, 3, jump! And I don't want to jump. And जब मैं कूदी, literally सारे रोंडा के लोग तालियां बजा रहे, ये fun. क्योंकि 1.5 घंटा लग गया था उसमें. सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी. तुम्हें धक्का मार के खुदवाया गया था कि कूद जाओ बेटा. बट खैर वो आपका सबसे, मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई थी वहां पे. स्टंटमैन ने मुझे धक्का मार दिया कि गिर जा तू. क्योंकि तुम 3.5 साल लोगे एक स्टंट के लिए, तो ये होगा ना. मैं क्लीन बिलो द बेल्ट.
अरे यार ये 3 घंटे लग गए इसे रेडी करने में और ये उल्लू के पट्टे कर ही नहीं रहे, गिर रहे हैं, अब क्या होगा? बट राइट रवि, आपके पास भी कुछ सवाल थे प्लीज. And that was really एंड आई एम important. रियली हैप्पी कि मोर देन अ होस्ट, जब कैमरा कट होता था तो Oh, सर एक बहुत he's a अच्छे boy. दोस्त हैं और हमने बहुत सारी बातें की जो हम आपको बता नहीं सकते सर, सॉरी. बट थैंक यू सो मच. रोहित सर के लिए एक बार जोरदार ताली एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. मैं रोहित सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाह रही थी, लेकिन सबने बोल दिया. बोलना भी मैं वही चाह रही थी जो सबने बोला. बट एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी अबाउट रोहित सर. एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्टंट बहुत डिफिकल्ट था. इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के, उनके नाम लिखे गए थे वहाँ पर, और सर ने कहा था कि ये लोग हैं, इनमें से कुछ ने स्टंट कंप्लीट किया है और कुछ ने कंप्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है. और मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले, आई थिंक दैट वाज द ओनली स्टंट वेयर आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग. सो मुझे सब लोग बोल रहे थे, क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है. एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वांट टू अबॉर्ट द स्टंट, आपको सिर्फ ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे. बट आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस. इन्होंने बोला क्यों, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी ना. आई सेड यस एंड आई डिड इट. सो थैंक यू वेरी मच सर. तो आप लोग इतना दूर चल करके यहाँ तक आए हैं, कोई सवाल अगर आपसे आपके हों रोहित सर से या बाकी कंटेस्टेंट से, प्लीज गो अहेड. Yeah, it has happened. Obviously, स्पेन जाएंगे और बुल वाला स्टंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? It happened and it's a very beautiful stunt. When you see it, you'll like it, yeah. पेन से ज्यादा एक्चुअली वो पेन इन स्पेन टैग है इनका, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टंट, कि स्टंट अच्छे से परफॉर्म हो, एंड वो उन्होंने किया. एंड ये सीज़न काफ़ी एंटरटेनिंग भी रहा, और वही मैं चाहता था कि स्टंट्स तो हो बट साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन भी ज़्यादा हो, ताकि जो ऑडियंस देखे उन्हें एक होलसम पैकेज मिले जैसे एक फिल्म होती है. सो आई थिंक ये सीज़न वैसा रहा है एंड आप सबको पसंद आएगा. लड़कियां बहुत ही अच्छी थी इस बार एंड बहुत आगे तक आई हैं. मतलब मैं कौन जीता या कौन विनर होगा ये तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आई एम रियली प्राउड कि हर बार हर सीज़न में हम ये चाहते थे और इस सीज़न में काफ़ी आगे तक लड़कियां पहुंची हैं और बहुत ही टफ कंपटीशन दिया. एक आध स्टंट ऐसे भी हुए जहाँ लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए और लड़कियां कर गई. एंड डिफिकल्ट स्टंट्स, ऐसे नहीं कि इजी वाले, डिफिकल्ट स्टंट्स बहुत ज़्यादा. आपने देखे हैं सारे कार्टून जो थे साथ में तो इनके वजह से काफ़ी एक कलर आ गया शो में, कलर्स के चैनल पे. सिर्फ ये स्टंट बेस्ड ही नहीं है, स्टंट्स तो है ही, बट इसे किस तरह से एंटरटेनिंग बनाए उसमें इन लोगों ने काफ़ी मदद की. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप टेलीविजन पे देखेंगे तो इट्स लाइक एन एंटरटेनिंग शो. इट्स नॉट जस्ट स्टंट्स और इट्स जस्ट नॉट ड्रामा, इट्स एन एंटरटेनिंग शो वेयर यू विल गेट एवरीथिंग. नहीं यार, बाकी नाराज हो जाएंगे, बट कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सडनली फिर ये होता था कि जो नॉन परफॉर्मर है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि माहौल ऐसा था कि वो ट्रेन होते गए, उनका डर निकलता चला गया. तो कोई एक का नाम नहीं ले सकता हूं मैं, बट ग्रेजुअली ये हुआ मेरे साथ, पहले भी हो चुका है, पहले भी सीजन्स में हुआ है कि लगता था कि हाँ यार ये तो कर जाएगा और फिर सडनली वो फेल होने लगता है. और जो एक मतलब डार्क हाउस जिसे कहते हैं कि जो एक नॉन परफॉर्मर है वो सडनली परफॉर्म करने लगता है माहौल की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से. सो किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूं मैं. कई बार मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैंने सोचा ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएगी और वो कर पाए, और जिनके बारे में मुझे लगा कि वो कर पाएंगे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया. तो किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं. नहीं कर पा रहे ऐसा नहीं होता था, बट जब रिहर्सल्स होती थी तब लगता था कि यार इसे कैसे थोड़ा सा इजी कर लें या टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर दें, ताकि ये सारे स्टंटमैन नहीं है, ये सब एक्टर्स हैं और इतना इजी नहीं होता है एक्टर्स के लिए जो स्टंट वाले नहीं होते, जो स्टंट परफॉर्मर्स नहीं है उनको स्टंट परफॉर्म करना. सो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्वीक कर देते थे, बट सभी स्टंट्स उन लोगों ने परफॉर्म किया. इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टंट्स है जो हमारे पिछले सीजन में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो टास्क इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लीट किया, जो पहली बार हुआ है फियर फैक्टर में. सो दैट वाज अ न्यू थिंग. 2-3 लड़कियां थी बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग आगे तक जा पाएंगे या नहीं. कुछ स्टंट्स वैसे थे कि इन लोग उस तरह से परफॉर्म, कार स्टंट इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो, जो कि बहुत डिफिकल्ट थे और जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया. यार होता ये है कि सारे हमारे ही लोग रहते हैं. सॉरी आई एम स्वेटिंग बिकॉज आई एम अंडर फीवर.
ये है कि हम सुबह होटल से निकलते हैं, स्टंट के लिए जाते हैं, रात को आते हैं और इतने थक जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं। तो मतलब इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाए बाहर, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सादगी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेहनती हैं एंड बहुत सिंपल है। सबसे बेस्ट पार्ट के कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कंट्रीज में जाओ तो जो मैनरिज्म है उनका वो आपको नहीं अच्छा लगता है, बट यहाँ स्पेन में इट वाज लाइक बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सादगी है। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यूरोप है, बट स्टिल बहुत सादगी है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहूँगा मैं है, वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लोग जानते हैं और खास करके इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पे। एक आध स्टंट में तो हमको उनको रोकना पड़ा था। इट वाज एज इफ हम इंडिया में शूट कर रहे हैं। रोंडा में हम लोग एक स्टंट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत इंडियंस आ गए थे और इंडियंस हैं वहाँ पर एंड थैंक्स टू देम हमें इंडियन खाना मिल रहा था। रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन और सो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी इंडियंस आते हैं वहाँ पर। कुछ एक तो कर गया मैं जो लग रहा था, बाकी 2-3 बहुत ही ब्यूटीफुल स्टंट्स थे। मैं एक स्टंट का नाम नहीं लूंगा, बट 3-4 ऐसे स्टंट्स थे जो लगा कि यार बहुत डायनामिक है और स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगेंगे। सो आई वाज रियली हैप्पी जब वो स्टंट्स हमने कंटेस्टेंट से परफॉर्म किया या जब हमने उसे शूट किया। सो ऐसे 3-4 स्टंट्स हैं जो मैं भी करना चाहूँगा या जो उन्होंने भी परफॉर्म किया। एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब स्टंट कंप्लीट होता है। समटाइम इट हैपेंस जो ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि जब स्टंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी तैयारी में 6-7 घंटे लग गए, इतना खर्चा हो गया एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो इफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सो इट हैपेंस कि ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी वो। सो स्टंट्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो भी करना है स्टंट कंप्लीट करो, जैसे भी करना है स्टंट को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इस बार लकीली बहुत कम ऐसे स्टंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। दोनों में अपनी एक डिफिकल्टी है यार, दोनों में। और ये एक ऐसा शो है, मतलब इट्स नॉट लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, चाहे वो कलर्स की टीम हो या वो एंडमॉल की टीम हो या वो स्टंट टीम हो या मैं हूँ या कंटेस्टेंट्स हो, बाकी जितने शोज देखते हैं आप। और ये शो में एक्चुअली इस शो में इट्स नॉट लाइक ए वीक में एक दिन आप गए और आप बैठ गए और सामने कुछ परफॉर्मेंस हुआ और आप अपने घर चले गए। ये 40 डेज हम सब साथ में रहते हैं बाहर, एक दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में। स्टंट्स है और इनको वाकई में बेचारे जो अभी हंस खेल के चले गए, इनको मार लगी है, इन्होंने चोटें खाई हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वाटर स्टंट है बट वो रात के वक्त हो रहा है, पानी ठंडा है एंड ठंडी है या गर्मी है या टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता था वहाँ, कभी कम हो जाता था। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो, इट्स नॉट एन ईजी शो। वो दिखता बहुत है क्योंकि एक ही शो है जो अब्रॉड में शूट होता है, रियलिटी शो आई बिलीव। तो दिखने में बड़ा ग्लैमरस और बड़ा ही खूबसूरत और ऐसा लगता है कि वी हैड अ गुड टाइम ओवर देयर, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेट 40 डेज सुबह जल्दी उठो, जाओ, स्टंट्स परफॉर्म करो, इतना आसान नहीं है इनके लिए भी और हम सब के लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एक्चुअली, इट्स अ शो जिसमें एक्चुअली यू गिव योर ब्लड एंड स्वेट। ये उस तरह का शो है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।